Hello students, I am M.K. Vijay, your SST teacher. In this video, or as you know, it is the last video of this chapter. In this video, we are going to discuss about control of environmental degradation. कैसे इसको हम रोक सकते हैं. In which first we can give use of recycled water. Actually, contaminated water is major source of pollution. Water pollution can be checked by maintaining use of water for processing by reusing and recycling. And two or more successive stages we can control the polluted water, as well as second, rainwater harvesting. As you know, the rainwater harvesting always is a main source of fresh water. If we are ready to do the rainwater harvesting, we can acquire more fresh water, more and more fresh water. And in this way, if we have a scarcity in any region of fresh water, we can provide fresh water with the help of rainwater harvesting, and in this way we can control environmental degradation. Next is proper water treatment. As you know, the treating hot water and effluent before releasing them in river and pond, treatment of industrial effluents can be done in 3 stages. First is primary treatment by mechanical means like as screaming, grinding, flocculation and sedimentation. You have read in science about it in 8th class as well as in 6th class. As well as the secondary treatment by biological process. With the help of biological process, we can change the polluted water into fresh water, as well as tertiary treatment, biological, chemical and physical process. In this way, we can treat the polluted water and control of environmental degradation. बोलिए. And next is control of air pollution. Actually, as you know, air pollution can be checked by reducing particulate matter. विशेष चीज़ों को हवा से अलग करके भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सेकेंड, बाय फिटिंग स्मोक स्टेप्स टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स. यह सब एयर को साफ करने का एक तरीका है जो फैक्ट्री अपनाती है कि उससे जो भी धुआं निकलने के समय ही उसे हम ट्रीट करके निकालें. जस्ट लाइक नेक्स्ट इज फैब्रिक फिल्टर
scrubber and inertial separators. It is especially for textile industries, fabrics, with the help of fabric filters, with the scrubber and inertial separators, we can control the air pollution, as well as last we can say noise pollution can be controlled by using better design equipment. अगर हम अपने सामानों का बेटर बढ़िया से डिजाइन करें तो उससे बहुत कम आवाज़ आएगी। जैसा जापान की गाड़ियों में देखते हैं कि कोई आवाज़ नहीं होती है। ऐसे कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हो कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वह एक रास्ता दिखलाई है। मतलब वह अपनी फैक्ट्री में कोई भी पोल्यूशन नहीं होने देती है। तो वह हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर हम चाहें तो अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अधिक से अधिक इक्विपमेंट का यूटिलाइज करके, लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, इसमें हम लेटेस्ट टेक्निक का प्रयोग करेंगे और जो लगा हुआ इक्विपमेंट है, सामान है, उसको हमेशा अपग्रेड करते रहेंगे। मिनिमाइजिंग वास्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। आप जानते हो कि एनटीपीसी में कोयला जलता है और कोयला से जो राख निकलता है वह बहुत बड़ी समस्या है। उससे पोल्यूशन फैलता है। लेकिन उसने क्या किया कि कम से कम वाष्प पैदा हो, कम से कम राख बचे और जो बचे उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम करें। आप आजकल सुन रहे होंगे एस ब्रिक, उसी के राख से ईंटा बनाना, तो राख का यूटिलाइज भी हो जाएगा और इन्वायरमेंट में जाने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, जहाँ आपकी फैक्ट्री हो उसके चारों ओर इतना ग्रीन बेल्ट लगा दो कि जो भी CO2 रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे या मोनोऑक्साइड रहे, उसको पेड़ सोख ले। ऐसा एनटीपीसी कर रही है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू पॉन्ड मैनेजमेंट। एक्चुअली pond management is saying about it, that is known as through S pond management, S water recycling system, yes, as well as liquid waste management। इन तरीकों के द्वारा हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एस पॉन्ड मैनेजमेंट हुआ, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम हुआ, लिक्विड वास्ट मैनेजमेंट, इसके द्वारा एनटीपीसी अपने यहाँ से पोल्यूशन फैलने वाली चीज़ों को वह रोक रही है। रिसाइकलिंग जस्ट लाइक अभी तुरंत बतलाए कि एस ब्रिक्स, और लिक्विड वास्ट मैनेजमेंट, पानी जो निकले गंदा उसको ट्रीटमेंट करके निकाला जाए। पॉन्ड मैनेजमेंट, पॉन्ड को साफ किया जाए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू, ध्यान दिया जाए कि यहाँ कौन सा इकोलॉजिकल चीज़ है, कैसे उसको हम बचा करके रखें, उसके बारे में उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, और इस तरह से डाटा के आधार पर जितने भी पावर स्टेशन हैं एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और इस तरह से एनटीपीसी ने एक
रास्ता हम लोगों को दिखलाया है कि यदि हम लोग चाहें तो इन्वायरमेंट को साफ कर सकते हैं। इट इज अनदर थिंग नाउ ए डेज द अनदर इंडस्ट्री इज नॉट willingly want to do it because such type of expenditure is considered as the vast uses। दूसरी कंपनी ये सब पर खर्च नहीं करना चाहती है, ये कॉस्ट कटिंग में आता है। यह सब पर खर्च करेगी तो उसके सामान की कीमत बढ़ जाएगी। वो चाहती है ये सब पर खर्च नहीं करना जिससे कि कीमत कम हो और उसका मुनाफा बढ़े, लेकिन सरकार की नीतियों के आधार पर यह सब करने के लिए वैसी कंपनी को बाध्य किया जा सकता है। दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट डे वी विल टेक द लाइव क्लास और लाइव डॉट क्लास। थैंक्स। और जिसको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वह इसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिख दोगे, हम उसको तैयार कर लेंगे। किसी भी वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। थैंक्स।